So in last lecture, we have completed this sum till PV ratio and fixed cost. These two parts we have done in last lecture. Now we have to do break-even sales and after that. Okay, so let's do it. अभी जो लास्ट लेक्चर का आपने किया है वो रिकॉर्ड है, वो साइड में रखना. ठीक है, चलो थर्ड पार्ट ब्रेक इवन सेल्स. सो लेट्स डू इट. थर्ड वन ब्रेक इवन सेल्स निकालना है अपने को. तो आ जाओ बच्चा. थर्ड break even sales. What beta? Break even sales. Formula क्या break even sales का? What is the formula of break even sales? Fixed cost upon what beta? PV ratio. This is the formula to calculate what break even sales. So चलो fixed cost क्या है अपना fixed cost? What is the fixed cost? Fixed cost देखो आपने calculate किया था ना बेटा in last lecture. So what was the fixed cost? Very good. Well done Payal. 1,44,000. Very nice. So your fixed cost is 1,44,000. Okay. 1,44,000 is your fixed cost and PV ratio is what? PV ratio कितना था बेटा अपना? Okay, 20%. Very nice. And 20% can be written as what? 0.20. 0.20. It can be written as 0.20, man. So come on, calculate. So what will be our break-even sales? भाई अपना break-even sales कितना हो रहा है? 7,20,000. Yes. So this is our break-even sales. इतना sales value आया तो अपने को no profit no loss का situation होगा. समझा? No profit no loss. So this is what our break-even. Okay. Got it? 7,20,000. आ जाओ नेक्स्ट स्टेप नंबर 4. ये हो गया अपना ब्रेक इवन सेल्स भी कैलकुलेट हो गया. अच्छा और क्या नाउ व्हाट वी हैव टू कैलकुलेट. सी और क्या कैलकुलेट करना अपने को देख लो, समझ लो पहले. नाउ द फोर्थ वन इज व्हाट वी हैव टू कैलकुलेट सेल्स टू अर्न प्रॉफिट ऑफ ₹6 लाख. व्हाट बेटा? सेल्स टू अर्न प्रॉफिट ऑफ ₹6 लाख. मतलब कितना सेल्स करोगे आप कि आपको प्रॉफिट 6 लाख रुपया मिलना चाहिए. तो ये क्या हो गया? व्हाट इज दिस? दिस इज टाइप ऑफ, दिस इज काइंड ऑफ रिक्वायर्ड सेल्स. आपको रिक्वायर्ड सेल्स फाइंड आउट करना होगा. यू हैव टू फाइंड आउट व्हाट रिक्वायर्ड सेल्स. कॉमन सेंस. तो चलो रिक्वायर्ड सेल्स का फॉर्मूला यू ऑल नो. व्हाट इज द फॉर्मूला बडी? यस, वेरी गुड. तो चलो आ जाओ वही फॉर्मूला यूज करते. फिर सोचना क्या है. तो चलो अभी स्टेप नंबर 4 पहले दिखा देते हैं हम लोग. क्या है? सेल्स टू अर्न व्हाट? सेल्स टू अर्न प्रॉफिट ऑफ रुपीस व्हाट? 6 लाख. सेल्स टू अर्न प्रॉफिट ऑफ रुपीस 6 लाख. ठीक है. चलो तो इसके लिए फॉर्मूला क्या होगा पता ही है. फॉर्मूला आ जाओ. फॉर्मूला देखो क्या है. रिक्वायर्ड सेल्स in rupees is equal to what is the formula? Fixed cost plus desired profit. याद आ रहा है? Fixed cost plus desired profit divide by, अब रुपीस में है ना तो divide by PV ratio. So let's do it. Fixed cost plus what? Desired profit fixed cost plus desired profit divided by what beta? PV ratio. Fixed cost plus desired profit divided by what bacha? Yes, PV ratio. Very good Mittal, very good.
वेल डन सनोवा, परफेक्ट 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 आंसर, याद रखो सब लोग। चलो नाउ come on, use your formula. Fixed cost you all know that is what 1,44,000, ये तो सबको पता है। फिक्स कॉस्ट आपका था 1,44,000 प्लस डिजायर्ड प्रॉफिट कितना था बेटा? डिजायर्ड प्रॉफिट दैट इज 6 लाख डिवाइडेड बाय व्हाट बेटा? पीवी रेशो क्या है? पीवी रेशो प्रॉफिट वॉल्यूम रेशो आपका कितना था? 20% है ना, 20% ही था ना, तो 0.20, ठीक है बराबर। चलो आ जाओ। सो 1,44,000 प्लस 6 लाख कितना हो गया? 7,44,000 डिवाइडेड बाय 0.20. चलो गेट द आंसर। सो व्हाट विल बी द आंसर? 7,44,000 divided by 0.20. So how much sales you need to? How much sales? 37. Yes. Shabash. Well done, Kajal. 37 lakh 20,000. 20,000. Perfect. बराबर है। So this is what your required sales. How much sales you need to do? 37 lakh 20,000. So your required sales is what? 37 lakh 20,000 means these amounts of sales. These much amount of sales you have to what? Push it, motivate it, whatever you have to do, you have to do it, right? Anyhow, you have to do the sales of 37 lakh 20,000 to earn a required or desired profit of rupees 6 lakhs. Simple. Okay. So sales to earn a profit of rupees 6 lakh. So how much sales you have to need? How much sales you need to do? That is 37,20,000 का वैल्यू का सेल्स अपने को करने का है। That's it. So this is what your required sales. 37,20,000 का सेल्स किया तो आपको 6 लाख का प्रॉफिट मिल जाएगा, बराबर। 6 लाख का प्रॉफिट मिलेगा अगर फिक्स कॉस्ट आपका 144 है तो, ठीक है। सो दिस इज व्हाट रिक्वायर्ड सेल्स। इतना सेल्स अपने को कैसे भी करना है, कैसे भी पुश करो, मोटिवेट करो, बराबर, एडवर्टीजमेंट करो, वॉट एवर यू हैव टू डू, यू हैव टू डू इट फॉर व्हाट? अर्निंग अ प्रॉफिट ऑफ रुपीज 6 लाख। चलो उसके बाद आपका एक और बोला है ना, फिफ्थ वन। नाउ द नेक्स्ट वन इज व्हाट? सी, sales to earn profit of 6 lakh done. Now margin of safety of the year 2009. हाँ, अभी आपको MOS निकालना है, MOS मार्जिन ऑफ सेफ्टी निकालना है फॉर द ईयर क्या बेटा? 2009 का, ऑफ द ईयर व्हाट? 2009 का मार्जिन ऑफ सेफ्टी आपको निकालना है, ठीक है। तो चलो निकाल लेते हैं ना फिर मार्जिन ऑफ सेफ्टी ऑफ द ईयर 2009। सो फिफ्थ वन, so fifth one, what? Margin of what? Safety for the year 2009। मार्जिन ऑफ सेफ्टी फॉर द ईयर 2009। अब बेटा मार्जिन ऑफ सेफ्टी का फॉर्मूला आपको पता है, चलो नोट डाउन। मार्जिन ऑफ सेफ्टी MOS, मार्जिन ऑफ सेफ्टी इन किस में निकालना है आपको? रुपीज में। मार्जिन ऑफ सेफ्टी इज इक्वल टू व्हाट? एक्चुअल सेल्स in rupees minus break even sales in rupees, right? Actual sales minus what बेटा? break even sales। तो चलो एक्चुअल सेल्स अपना कितना आ रहा है? एक्चुअल सेल्स दिया था ना बेटा, अभी देखो 2009 का एक्चुअल सेल्स देखो, 2009 डेटा किससे रिलेटेड है अपना? मार्जिन ऑफ सेफ्टी किससे रिलेटेड है? 2009 ना।
तो आपको एक्चुअल सेल्स भी 2009 का ही देखना पड़ेगा ना बेटा. सो योर एक्चुअल सेल्स फॉर 2009 इज व्हाट 14,40,000. याद रखना 2009 का डेटा है ना बेटा, तो एक्चुअल सेल्स भी 2009 का ही देखोगे. सो 14,40,000. एक्चुअल सेल्स 14,40,000 माइनस व्हाट ब्रेक इवन सेल्स. क्या बेटा ब्रेक इवन सेल्स? मेरे ख्याल से ब्रेक इवन सेल्स अभी जस्ट आपने पीछे ही कैलकुलेट किया है. तो ब्रेक इवन सेल्स दिख रहा है आपको 7,20,000. बराबर है. ब्रेक इवन सेल्स कितना आपका 7,20,000. सो ब्रेक इवन सेल्स इज व्हाट 7,20,000. Got it? So this is what actual sales minus break even sales. So you can get your margin of safety. 7,20,000. Yes, perfect. Very good, Kajal. So your answer for margin of safety is what 7,20,000. तो अच्छा है ना बेटा. एक्चुअल सेल्स है माइनस ब्रेक इवन सेल्स. बराबर. तो मार्जिन कितना मिला? मार्जिन ऑफ सेफ्टी इज व्हाट 7,20,000. सो दिस इज योर मार्जिन ऑफ safety, that is 7,20,000. That's it. Got it? Clear? Done everyone? Okay? चलो किसी का बाकी है तो कर लो फटाफट. Now see, problem number 3. A company annually manufactures and sells 20,000 units of a product. 20,000 units manufacture और sell कर रहा है. The selling price of which is rupees 50. Selling price कितना है उसका 50 रुपीज है. ओके, सेलिंग प्राइस 50 है और प्रॉफिट अर्न किया है 10 पर यूनिट. प्रॉफिट कितना अर्न किया बेटा 10 पर यूनिट का. ठीक है. सेलिंग प्राइस है 50, प्रॉफिट अर्न है 10 पर यूनिट. एनालिसिस ऑफ कॉस्ट ऑफ 20,000 यूनिट्स. और जो एनालिसिस है कॉस्ट ऑफ 20,000 यूनिट्स वो आपको एज फॉलोज दिया है. ठीक है. क्या बोल रहा है? मटेरियल कॉस्ट है उसमें 3 लाख, लेबर कॉस्ट है 1 लाख, ओवरहेड्स है 4 लाख. ठीक है. अब उस 4 लाख में से 50% है वेरिएबल. अच्छा, ओवरहेड में 50% वेरिएबल है. अगर वेरिएबल 50% है तो फिक्स भी हो गया 50%. कॉमन सेंस ना. बराबर है. इफ वेरिएबल इज 50%, इफ वेरिएबल कॉस्ट 4 लाख में से वेरिएबल आपका 50 है तो बाकी बचा फिक्स, वो भी 50. खत्म. ठीक है. मतलब 2 लाख आपका क्या होगा 2 लाख वेरिएबल कॉस्ट होगा और 2 लाख फिक्स कॉस्ट होगा. खत्म. बराबर है. यू आर रिक्वायर्ड टू कंप्यूट व्हाट. आपको क्या कंप्यूट करना है? सबसे पहला ब्रेक इवन सेल्स इन यूनिट्स एंड रुपीज. सेल्स टू अर्न प्रॉफिट ऑफ रुपीज 4 लाख. प्रॉफिट व्हेन 15,000 यूनिट्स आर सोल्ड. एंड न्यू ब्रेक इवन पॉइंट सेल्स. क्या? न्यू ब्रेक इवन पॉइंट सेल्स इन रुपीज if fixed cost is reduced by 10%. ठीक है. तो ये सारी चीजें आपको कैलकुलेट करनी है. All these things you have to calculate it. That's it. ठीक है. तो ये सब अपना बेसिक इंफॉर्मेशन है. अब इसी के बेस पे आपको सम सॉल्व करना है. ओके. तो देख लिया ना क्या क्या. ब्रेक इवन सेल्स इन रुपीज एंड यूनिट्स में फाइंड आउट करना है. सेल्स टू अर्न प्रॉफिट ऑफ रुपीज 4 लाख. प्रॉफिट व्हेन 15,000 यूनिट्स आर सोल्ड. और लास्ट वन अपना जो केस है कि अगर फिक्स कॉस्ट रिड्यूस हो गया 10% से तो क्या होगा न्यू ब्रेक इवन सेल्स. बेटा अब ये चारों कैलकुलेट करने के लिए सबसे पहले तो आपको क्या निकालना पड़ेगा? पीवी रेशियो. द वेरी फर्स्ट व्हाट यू हैव टू कैलकुलेट योर पीवी रेशियो. फिक्स कॉस्ट का टेंशन नहीं है. फिक्स कॉस्ट तो डायरेक्ट मालूम पड़ गया आपको 2 लाख है, क्योंकि 4 लाख में 50% वेरिएबल है तो बाकी 50% तो फिक्स्ड है, तो वो तो डायरेक्ट मालूम पड़ गया 2 लाख है, उसका कोई इशू नहीं है. पीवी रेशियो आपको निकालना है. क्या निकालना है? पीवी रेशियो. ठीक है. अब देखो, अब ये सब डायरेक्ट भी कर सकते हो आप. डायरेक्ट करोगे तो ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, लेकिन एक मैं शीट बता रहा हूं आपको, सिंपल सा रफली शीट. बराबर. ताकि कैसा भी घुमा कैसा आया तो वो रफली शीट बना के आप इजीली कर सकते हो और उससे एक थोड़ा प्रैक्टिस होएगा और कुछ नहीं. नहीं तो डायरेक्ट करेंगे तो डायरेक्ट भी हो जाएगा, बट थोड़ा सा एक लेंथी प्रोसीजर. तो शीट से आप पूरा स्टेप भी समझोगे कैसा क्या होता है. तो देख लेते हैं. आ जाओ. डायरेक्ट भी कर सकते हैं बट वो शीट से बता रहा हूं मैं. तो देखो अब ये पूरा इस पे कॉस्ट स्ट्रक्चर बना के दिया है, तो हम क्या करते हैं? चलो सॉल्यूशन. अब पूरा कॉस्ट स्ट्रक्चर है. देखो
मटेरियल है, लेबर है, ओवरहेड्स है, सब कुछ अपने को दिया है, बराबर है। तो मैं एक काम करता हूँ, सिंपल सा एक कॉस्ट शीट बना देता हूँ, कॉस्ट शीट फॉर 20,000 यूनिट्स। देखो कॉस्ट शीट और 20,000 यूनिट्स है अपना, 20,000 यूनिट्स सोल्ड किया ना बेटा, है कि नहीं, बराबर है, मालूम पड़ा। और एक तरह से हम इसको प्रॉफिट स्टेटमेंट करके भी यूज कर सकते हैं। प्रॉफिट स्टेटमेंट अपना जो फॉर्मूला है ना, सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट, बराबर है, इज इक्वल टू कंट्रीब्यूशन, फिर लेस किया फिक्स कॉस्ट तो प्रॉफिट आ जाएगा। प्रॉफिट स्टेटमेंट ये सिर्फ एक आपको समझने के लिए बता रहा हूँ, डायरेक्ट भी कर सकते हो लेकिन। सो प्रॉफिट स्टेटमेंट अंडर व्हाट, मार्जिनल कॉस्टिंग, अंडर मार्जिनल कॉस्टिंग, बराबर है। सिंपल सा प्रॉफिट स्टेटमेंट रहेगा, नंबर बना लिया, ठीक है, ये आपका पर्टिकुलर्स हो गया, नंबर पर्टिकुलर्स, इधर टोटल का कॉलम बना दिया मैंने, टोटल, और एक कॉलम में बना देता हूं पर यूनिट के लिए, ठीक है, टोटल और पर यूनिट। चलो तो सबसे पहले बेटा द वेरी फर्स्ट वन इज व्हाट, आपका क्या आता है, सेल्स, पता है ना, फॉर्मेट पता है ना बेटा, सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट इज इक्वल टू कंट्रीब्यूशन, फिर माइनस फिक्स कॉस्ट इज इक्वल टू प्रॉफिट, सेम। चलो तो ये प्रॉफिट स्टेटमेंट है अंडर मार्जिनल कॉस्टिंग, बराबर है। तो आ जाओ, और कॉस्ट शीट का भी यूज करेंगे, वो जब लेस करेंगे मटेरियल लेबर कॉस्ट, मटेरियल लेबर ओवरहेड्स, उसके लिए। तो सेल्स, इसलिए इधर मेन देखो प्रॉफिट स्टेटमेंट लिखा मैंने, सेल्स आपका कितना है, 10 लैक्स है ना, कैसे आए 10 लैक्स, 20,000 यूनिट्स है इंटू रुपीज 50 पर यूनिट है, तो कितना होता है 20,000 इंटू 50 कितना होता है बेटा, 10 लैक्स, बराबर है। और ये पर यूनिट तो सवाल ही नहीं उठता, वो तो पता ही है 50 यूनिट्स, ये नहीं लिखेगा तो फिर भी चलेगा ना, 50 यूनिट्स है इंटू 20,000, ये आपका मेन 20,000 यूनिट्स है, तो ये सेल्स आ गया। अब सेल्स में से क्या माइनस करोगे आप, लेस वेरिएबल कॉस्ट। सेकंड स्टेप क्या होता है, लेस वेरिएबल कॉस्ट। अब बेटा ये जो वेरिएबल कॉस्ट है उसमें क्या क्या आएगा, सबसे पहला आएगा मटेरियल, मटेरियल कितना अपना क्वेश्चन में दिख रहा है आपको, मटेरियल है 3 लाख का कॉस्ट, 3 लाख का कॉस्ट है। लेबर का कॉस्ट कितना है, लेबर का कॉस्ट कितना बेटा 1 लाख, और वेरिएबल ओवरहेड्स कितना है, वेरिएबल ओवरहेड्स वो कितना है 50%, तो 4 लाख का 50% कितना हो गया 2 लाख। तो चलो टोटल कॉस्ट कितना आ गया इधर 6 लाख, पर यूनिट निकालोगे तो 30, बराबर, ठीक है, पर यूनिट निकाला तो क्या हो गया 6 लाख डिवाइड बाय 20,000, 30। चलो बेटा अब ये हो गया अपना वेरिएबल कॉस्ट माइनस किया तो अपने को क्या मिलेगा, कंट्रीब्यूशन। देखा सेम अपना वो जो प्रॉफिट स्टेटमेंट है वही फॉलो कर रहे हैं, तो 10 माइनस 6 हो गया 4 लाख। चलो पर यूनिट निकालोगे तो कितना आएगा 4 लाख डिवाइड बाय कितना यूनिट है 20,000 यूनिट्स, 4 लाख डिवाइड बाय 20,000 कितना हो गया 20, बराबर 20,000. यस यस बेटा 20,000। नाउ क्या करो अभी, लेस फिक्स कॉस्ट, फोर्थ वन लेस फिक्स कॉस्ट, फिक्स कॉस्ट भी वही है ना 4 लाख का 50%, भाई वेरिएबल कॉस्ट, अगर वेरिएबल कॉस्ट 50% है तो बाकी बचा तो फिक्स कॉस्ट ही हो गया, तो फिक्स कॉस्ट कितना है 2 लाख। फिक्स कॉस्ट इन टोटलिटी रिमेन सेम, याद रखने का, बराबर है, टोटल आ गया, इसका पर यूनिट निकालना है तो निकाल सकते हो, बट फिक्स कॉस्ट में अपने को मेनली टोटल पे ध्यान देने का, ठीक है। पर यूनिट कितना आएगा 2 लाख डिवाइड बाय 20,000, खत्म। और फाइनली अपने को क्या मिल जाएगा बेटा, व्हाट वी विल गेट फाइनली, प्रॉफिट।
चलो फिफ्थ वन, प्रॉफिट। तो कितना आ गया प्रॉफिट? 2 लाख, और पर यूनिट भी आपका 10। दैट्स इट। ये एक समझाने के लिए पूरा स्टेटमेंट बनाया मैंने बस, बराबर है। एक्स्ट्रा है ये, बट एक आपका पूरा स्टेप क्लियर होता है। आप डायरेक्ट भी सम कर सकते हो, ऐसा कुछ नहीं, बट ये पूरा एक प्रॉपर सीक्वेंस हो गया आपके लिए समझाने के लिए, ठीक है। तो इसमें सब आ गया, देखो सेल्स लेस वेरिएबल कॉस्ट, कॉन्ट्रीब्यूशंस माइनस फिक्स कॉस्ट इज इक्वल टू प्रॉफिट, ठीक है। अब देखो, ठीक है, ये एक सिर्फ एक थोड़ा सा लेंदी प्रोसीजर किया है, बाकी डायरेक्ट कर सकते हो आप। चलो अब आ जाओ एक एक करके स्टेप। क्या पहले फाइंड आउट क्या करना है आपने को? ब्रेक इवन। बेटा ब्रेक इवन फाइंड आउट करने से पहले सबसे पहले आपको क्या फाइंड आउट करना पड़ेगा? पीवी रेशो। सबसे पहले पीवी रेशो। पीवी रेशो का फॉर्मूला कौन सा यूज होगा? कंट्रीब्यूशन अपॉन सेल्स इनटू 100 करना है तो कर दो, फॉर परसेंटेज के लिए, नहीं करोगे तो फिर भी चलेगा। चलो कंट्रीब्यूशन कितना है अपना, ये देखो। कंट्रीब्यूशन आपको जो लेना ले सकते हो, कंट्रीब्यूशन पर यूनिट का लेना तो पर यूनिट का लो, या फिर अमाउंट का लेना तो अमाउंट का लो, आपके ऊपर डिपेंड है। तो चलो पर यूनिट लेता हूं मैं। कंट्रीब्यूशन 20 है, सेल्स है 50, और अगर आपको अमाउंट भी लेना तो अमाउंट भी ले सकते हो। 4 लाख डिवाइड बाय 10 लाख, एक ही आंसर आए, समझे। तो मैं इधर लेता हूँ 20 डिवाइड बाय 50 इंटू 100, कितना आ गया? 2. 40% आ गया। 40% पीवी रेशो, राइट। चलो अब नेक्स्ट, अब निकालो जो क्वेश्चन में पूछा है, ब्रेक इवन सेल्स इन यूनिट्स एंड रुपीस। ब्रेक इवन सेल्स इन यूनिट्स एंड रुपीस। तो सबसे पहले हम लोग निकालते हैं ब्रेक इवन सेल्स इन, ब्रेक इवन सेल्स इन यूनिट्स। बेटा ब्रेक इवन सेल्स इन यूनिट्स का फॉर्मूला क्या है पता है ना सबको? फिक्स कॉस्ट अपॉन एफसी, फिक्स कॉस्ट अपॉन कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। फॉर्मूला पता है ना सबको? फिक्स कॉस्ट अपॉन कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। फिक्स कॉस्ट कितना अपना? 2 लाख। कंट्रीब्यूशन पर यूनिट कितना अपना? 20। ये देखो कंट्रीब्यूशन पर यूनिट दिख रहा है इधर, 20। चलो कितना आ गया यूनिट्स में? 10,000 यूनिट्स आ गया कि नहीं? चलो अभी क्या निकालते हैं? ब्रेक इवन सेल्स इन, ब्रेक इवन सेल्स इन रुपीस। चलो इसका फॉर्मूला क्या बेटा? फिक्स कॉस्ट अपॉन पीवी रेशो। चलो फिक्स कॉस्ट अपना है 2 लाख, पीवी रेशो कितना है? 40%। 40% कैन बी रिटन एज 0.40। 40% को 0.40 लिख सकते हो आप। तो कितना आ गया आंसर? 5 लाख। ओके, सो ये हो गया ब्रेक इवन सेल्स इन रुपीस का आंसर। गॉट इट? चलो अभी क्या आएगा? थर्ड वन। चलो थर्ड वन क्या आएगा आपका? ब्रेक इवन, सॉरी, बराबर। नेक्स्ट क्या बोल रहा है आपको? सेल्स टू अर्न अ प्रॉफिट ऑफ, सेल्स टू अर्न अ प्रॉफिट ऑफ रुपीस कितना? 4 लाख। तो ये कौन सा फॉर्मूला यूज होगा बेटा इधर? रिक्वायर्ड सेल्स का। रिक्वायर्ड सेल्स इन रुपीस इज इक्वल टू, फॉर्मूला क्या है इसका? अभी बताया था, फिक्स कॉस्ट प्लस डिजायर्ड प्रॉफिट मतलब डीपी डिवाइड बाय व्हाट? पीवी रेशो। चलो फिक्स कॉस्ट कितना अपना? 2 लाख प्लस डिजायर्ड प्रॉफिट कितना बोल रहा है? 4 लाख। डिजायर्ड प्रॉफिट कितना चाहिए अपने को? 4 लाख डिवाइड बाय पीवी रेशो कितना है बेटा? 40%। 40% मतलब 0.40। चलो तो डायरेक्ट आंसर बताओ कितना रहा है? 2 लाख प्लस 4 लाख 6 लाख डिवाइड बाय 0.40। वेरी गुड, 15 लाख। शाबाश बेटा, 15 लाख। तो ये रिक्वायर्ड सेल्स इन रुपीस हो गया, हो गया। फिर अभी क्या बोल रहा है नेक्स्ट? प्रॉफिट व्हेन 15,000 यूनिट्स आर सोल्ड। ये भी हो गया सबका।
चलो फोर्थ वन क्या बोल रहा है, प्रॉफिट व्हेन 15,000 यूनिट्स आर सोल्ड। 15,000 यूनिट्स आर सोल्ड। चलो, तो प्रॉफिट निकालने के लिए हम क्या करते हैं, प्रॉफिट इज इक्वल टू क्या होता है बेटा, अपना फॉर्मूला क्या है, कंट्रीब्यूशन माइनस फिक्स कॉस्ट। ठीक है, यही फॉर्मूला है। चलो अब कंट्रीब्यूशन निकालना है। अब कंट्रीब्यूशन कैसे निकालो, कितना यूनिट सोल्ड करना है अपने को, 15,000 यूनिट। और कंट्रीब्यूशन आपको पता है, कंट्रीब्यूशन कितना है, ₹20 पर यूनिट है। 15,000 यूनिट्स है और 20 पर यूनिट का कंट्रीब्यूशन है, पता है ना। कंट्रीब्यूशन का शीट देखो इधर, कंट्रीब्यूशन ये देखो, कंट्रीब्यूशन 20 पर यूनिट है। 15,000 यूनिट के हिसाब से कितना होगा, तो 15,000 यूनिट इंटू 20 पर यूनिट माइनस फिक्स 3 कॉस्ट। lakh. फिक्स कॉस्ट आपको पता ही है, फिक्स कॉस्ट आपका कितना है, 2 लाख। तो चलो पहले अमाउंट में कन्वर्ट कर लो इसको भी, 15,000 इंटू 20, 3 लाख माइनस 2 लाख। 1 lakh. शाबाश, तो ये हो गया 1 लाख, बराबर है। देखो पहला कंट्रीब्यूशन 20,000 यूनिट के हिसाब से था, अब इधर बोल रहा है 15,000 यूनिट के हिसाब से कितना होना चाहिए प्रॉफिट, तो कंट्रीब्यूशन भी 15,000 यूनिट के हिसाब से ले लिया। 15,000 इंटू कंट्रीब्यूशन का पर यूनिट तो पता ही है 20, बाकी फिक्स कॉस्ट तो सेम ही रहने वाला है। हो गया। फिर लास्ट क्या बोल रहा है, हो गया ये सबका। लास्ट आपको बोल रहा है फिफ्थ वन कि न्यू ब्रेक इवन, न्यू बीईपी सेल्स to a new break even sales in rupees if fixed cost is reduced by 10%। अगर फिक्स कॉस्ट हमने क्या किया, रिड्यूस कर दिया 10% से, तो क्या होगा न्यू ब्रेक इवन सेल्स। तो आ जाओ, सबसे पहले प्रेजेंट फिक्स कॉस्ट कितना है, प्रेजेंट फिक्स कॉस्ट कितना है अपना, 2 lakhs। अब उसको 10% से रिड्यूस कर दो, रिड्यूस बाय व्हाट बेटा, 10%। तो 2 लाख का 10% कितना होता है, 20,000। 10% से रिड्यूस किया तो न्यू फिक्स कॉस्ट कितना आ गया, 1,80,000। दिस इज व्हाट न्यू फिक्स कॉस्ट हो गया आपका, आफ्टर रिडक्शन आपका फिक्स कॉस्ट कम हो गया 1,80,000। अब बोल रहा है न्यू ब्रेक इवन सेल्स निकाल लो इसी के बेसिस पे, तो निकाल लेते हैं ना बेटा। ब्रेक इवन सेल्स, ब्रेक इवन पॉइंट, बीईपी मतलब ब्रेक इवन पॉइंट सेल्स इन रुपीस। तो क्या फॉर्मूला होता है, पता है फॉर्मूला, सबको पता है, एवरीवन नो द फॉर्मूला, एवरीवन नोज, दैट इज फिक्स कॉस्ट अपॉन पीवी रेशियो। बट इधर क्या लिख दो, सिर्फ न्यू फिक्स कॉस्ट अपॉन पीवी रेशियो। चलो न्यू फिक्स कॉस्ट कितना अपना 1,80,000 आया। पीवी रेशियो आपका क्या है 40%, 40% मतलब 0.40। चलो तो नया ब्रेक इवन पॉइंट सेल्स कितना बन गया बच्चा, 4,50,000. यस, परफेक्ट। ठीक है, ये हो गया अपना न्यू ब्रेक इवन पॉइंट। तो गॉट इट बेटा, न्यू ब्रेक इवन पॉइंट सेल्स आ गया 4,50,000। अगर आपका न्यू फिक्स कॉस्ट हो गया 1,80,000, तो आपका नया ब्रेक इवन पॉइंट सेल्स क्या होगा, 4,50,000। 4,50,000, ठीक है, मतलब 4,50,000 का सेल्स है तो नो प्रॉफिट नो लॉस। ठीक है, बराबर। ये हो गया आपका, पीछे भी हमने देख लिया, प्रॉफिट व्हेन 15,000 यूनिट्स आर सोल्ड। तो प्रॉफिट के लिए क्या है, कंट्रीब्यूशन माइनस फिक्स कॉस्ट। कंट्रीब्यूशन का अमाउंट निकालना है तो पर यूनिट आपको दिया ही है, बराबर। अभी देखो पर यूनिट आपको दिया, पहले क्या था, पहले प्रीवियसली ये जो कंट्रीब्यूशन था 4 लाख 4 लाख, वो किसके कितने यूनिट के ऊपर था, 20,000 यूनिट्स के ऊपर था। तो भाई 15,000 यूनिट्स के ऊपर कितना हो जाएगा, 3 लाख। कैसे, 15,000 यूनिट्स, 15,000 यूनिट्स इंटू कंट्रीब्यूशन पर यूनिट तो फिक्स ही होता है।
ठीक है, तो 15,000 यूनिट्स इंटू 20 पर यूनिट कर लो तो अपना कॉन्ट्रीब्यूशन आ गया, माइनस फिक्स कॉस्ट तो भाई वो तो फिक्स ही है, उसमें तो कोई सवाल ही नहीं उठता। अब आपको फाइनली आ गया आपका प्रॉफिट। दैट्स इट, क्लियर। तो इतना सब लोग को अच्छे से प्रैक्टिस करना है, डू योर बेस्ट, ओके।